Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Pisces Ascendant and the predictions for the month of March 23. Now Pisces is a peace-loving ascendant and you will find a lot of people who are very calm, quiet and spiritually inclined in this ascendant. Now March promises to be a mixed month for Pisces ascendant. The ascendant has exalted Venus in the first house along with Jupiter till 11th of March. So any kind of a luxury item or things that you wanted to buy from a very long time, this would be the right time to buy it. Time from 1st and 11th of March is very good for buying any kind of a vehicle, luxury product, fashion, apparel related things, cosmetic related things. Because after 11th of March, when Venus moves to the second house, it is going to combine with Rahu, and Venus here will be in the sign of Aries where it becomes powerless, and that is why you should avoid spending money on anything that is related to garments, vehicles and cosmetics starting from 12th of March to 31st of March. So any kind of a item that you want to buy, first 11 days are favorable, but after that time is not going to be good. Mercury is your lord of 7th house and it is going to be sandwiched between Sun and Saturn till 15th of March in the 12th house. So for the first 15 days, the 7th house lord in 12th would mean that you should avoid arguments with your spouse during this time. During the second half of March, from 16th March to 31st of March, Mercury is going to be in your ascendant and it is going to aspect its own sign, and this time frame will be very good from the partnership perspective. So the two contrasting pictures is what you will see as far as the marital harmony is concerned in March. Jupiter is the 10th house lord and is also going to get boosted, and you will see a good time at the workplace till 11th of March. Jupiter aspects the fifth house, and those involved in education, artistic work, and speculation will see a good time in the month of March, especially between the time frame of 11th to 24th of March. Student will also have a good month, and especially 21st and 22nd March are 2 days when they can think of appearing for a competitive exam and they will see themselves to be successful. People who are seeking romance will also see good time in the first 10 days of the month from 1st March to 10th of March. Jupiter in transit is permitting you to conceive a child and an opportunity to get married in the month of March, and the best dates are the first 20 days from 1st to 20th of March. Now you can get associated with some kind of a foreign entity in this month, or you can spend your time in a not-for-profit organization or provide your services in a hospital from 25th of March to 7th of March. From 25th of March to 7th of April, this is a very critical time because you should avoid taking any big decisions during this time frame. If you are running a business, then you should not spend any kind of a money on capital expenditure during this timeline. Any kind of a new investment should not be made, otherwise they will not prove to be fruitful for you. Also, certain dates when you need to be very cautious in the month of March. These dates are 7th and 8th of March, 11th and 12th of March, and 20th and 21st of March. If you look overall, this is a mixed month for you. The first 10 days are extremely good from buying a item of convenience as well as seeing a very good time at the workplace. But the last 1 week is something that you need to be very cautious about, and you should not take any decisions during this time frame. So that's the summary for you for the month of March. I would request you to subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मीन लग्न वालों के लिए मार्च 2023 का महीना कैसे निकलेगा। देखिए, मीन आखिरी राशि पड़ती है हमारे कालचक्र में और इससे कई बार आखिरी चीजें भी देखी जाती हैं, जैसे 12वां घर व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है और 12वें भाव से आपके पांव देखे जाते हैं या समुद्र देखा जाता है, जो भी आपको जीवन का अंत दिखाता है। तो यहाँ पर मीन लग्न के लोग वैसे भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल कैटेगरी में आने वाले लोग होते हैं। बहुत शांति प्रिय, शांत स्वभाव के जितने भी आप साधु सन्यासी देखेंगे और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर तक तरक्की करके गए हैं, ये सब आपके मीन लग्न के लोग होते हैं। इनको लड़ाई झगड़ा वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं होता और ये अपना काम बहुत शांति से करते हैं।
तो यहाँ पे आपके लिए ये महीना मिला जुला रहेगा, क्योंकि पहले 10 दिनों तक तो उच्च का शुक्र आपके लग्न स्थान में बैठा हुआ है और यहाँ पर गुरु भी अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत समय से कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे या ऐसा कोई भी महंगा चीज जो आप खरीदना चाह रहे हैं, जैसे कुछ लोगों को कपड़ों का शौक होता है, कुछ लोगों को कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का शौक होता है, फ्रिज टेलीविजन वगैरह हो गया, बहुत समय से अगर आप कुछ प्लान करना चाह रहे हैं खरीदने का, तो वो पहले 11 दिनों में आप कर सकते हैं जब तक शुक्र यहाँ बैठा है 1 से 11 मार्च के बीच में। इसके बाद जब शुक्र द्वितीय भाव में चला जाएगा तो एक तो राहु के साथ युति करेगा, और राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठता है उसकी कारक तत्वों को खराब करता है। ना सिर्फ ये, यहाँ पर आपकी मेष राशि पड़ती है मंगल की, और मंगल की राशियों में शुक्र बलहीन हो जाता है। तो जो आप काम पहले 11 दिनों में कर रहे थे वो आपको बिल्कुल नहीं करना है बचे हुए दिनों में, यानी 12 से 31 मार्च तक अगर आप कोई भी खरीदी करने जाएंगे तो फिर उस चीज से आपका नुकसान होगा। इसलिए अगर कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं तो पहले 11 दिनों में आप कर लीजिए। प्रोफेशन वाइज अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि एक तो कर्मेश स्वयं लग्न स्थान में बैठा हुआ है, और इसके अलावा आप अगर सर्विस में हैं तो सूर्य भी आपको 15 मार्च तक अपने ही सर्विस के भाव को देखता रहेगा। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छा समय है वो 1 से 11 मार्च का ही है, क्योंकि इस समय में लग्नेश गुरु के साथ शुक्र बैठा रहेगा उच्च का, और शुक्र आपका कन्वीनियंस का या आराम का ग्रह होता है। तो प्रोफेशन लेवल पे काफी सुकून मिलेगा पहले 11 दिनों तक। बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, और बुध भी 12 भाव में बैठे रहेंगे 15 मार्च तक, जहाँ पे ये पिस जाएंगे सूर्य और शनि के बीच में। तो यहाँ पे अगर आप अपने पति या पत्नी, या फिर अगर आपका धंधा है तो उसमें अगर पार्टनरशिप का है तो उसमें आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद करना टालिए। 15 मार्च तक का समय आपके लिए आर्गुमेंट के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं है। जो द्वितीय भाव है, जब बुध यहाँ से निकल के प्रथम भाव में चला जाएगा तो 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से बुध अपने ही भाव को देखेगा। तो ये फिर से कॉन्ट्रास्टिंग हो गया। पहले 15 दिन उतने अच्छे नहीं है मैरिटल हार्मनी या बिजनेस पार्टनरशिप के लिहाज से, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरु जैसा मैंने बताया लग्न स्थान में बैठे रहेंगे, तो यहाँ पे शुक्र उच्च का इनको और बढ़ावा देगा। तो पहले 11 दिन प्रोफेशन के हिसाब से बहुत अच्छे रहेंगे। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ती है पंचम भाव पे, जहाँ से आप विद्या, संतति या शेयर बाजार जैसी चीजें देखते हैं। जितने भी लोग इन सारे चीजों में ही डील करते हैं एज अ प्रोफेशन, उनके लिए 11 से 24 मार्च का समय सबसे बेहतरीन रहेगा। ना सिर्फ ये समय में उनको पैसे की अच्छी आवक होगी, लेकिन वो कुछ चीज अचीव कर पाएंगे। सब्सटैंशियल अचीवमेंट जिसे हम कहते हैं, वो इन लोगों के लिए इस समय में हो पाएगा। अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। खास करके 21 और 22 मार्च 2 दिन ऐसे रहेंगे जब आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पा सकेंगे। जितने भी लोग रोमांटिक स्वभाव के हैं उनके लिए भी ये महीने के पहले 10 दिन बहुत अच्छे हैं। सो 1 से 10 मार्च तक का समय जितने भी लोग रोमांटिक नेचर के उनके लिए बहुत अच्छा है। गुरु पंचम भाव को देख के आपको यहाँ पे एक संतति प्लान करने का मौका दे रहा है मार्च के आखिरी तक, और सप्तम भाव को देखने की वजह से भी वो आप जितने भी सिंगल लोग हैं उनको भी विवाह के बंधन में बंधने का गोचर में मौका दे रहा है। आपकी अपनी जन्म कुंडली में आपको देखना पड़ेगा कि महादशा अंतरदशा लॉर्ड इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो कर रहे हैं तो इस समय फिर आपकी शादी होकर रहेगी। इसके अलावा इस महीने में 3 3 ग्रह पहले 15 दिनों तक 12वें भाव में ही बैठे रहेंगे, और इसके बाद बचे हुए समय में भी शनि तो बैठा ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको किसी भी, अगर आप फॉरेन एंटिटी के साथ आपका कनेक्शन आता है, या फिर आप किसी एनजीओ के साथ जुड़ के काम करते हैं, या अस्पताल में अपनी सेवाएं देते हैं, 25 मार्च से 7 अप्रैल तक का समय इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इस समय में आपको किसी भी तरह का कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे कि आपके भविष्य पर उसका प्रभाव पड़ रहा हो। जिसको जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहिए। जिसे हम कहते हैं बोरिंग जिंदगी, रोज सुबह उठ के वही किया जो पहले कर रहे थे। तो 24 मार्च तक जो आप करते आए हैं वो 25 मार्च से 7 अप्रैल तक भी वही करते रहिए। तो ये समय आपके लिए ठीक ठाक निकल जाएगा। अभी हर महीने में मैं आपको दिन बताता हूँ जब आपको सावधान रहना चाहिए। तो ये दिन आपके लिए मार्च के महीने में है 7 और 8 मार्च, 11 और 12 मार्च, और 20 और 21 मार्च। इन दिनों में आप सावधान रहिए और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना आप टालिए। अगर आप ओवरऑल देखिए तो ये महीना आपके लिए मिला जुला है, क्योंकि पहले 10 11 दिन तो कार्यस्थल पे काफ़ी अच्छा समय बीतेगा आपका।
और शुक्र भी लग्न स्थान में है, तो शुक्र एक मौज कराने वाला ग्रह है। तो आप कोई भी खरीदना चाहते हैं सामान, जो आप बहुत समय से खरीद रहे हैं, का प्लान कर रहे थे, वो भी आप इस समय में ले सकते हैं। लेकिन जो महीने का आखिरी हफ्ता रहेगा 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक का, आपके आप अकेलापन महसूस करने लग जाएंगे, या फिर आपको काफी दिक्कत होगी डिसीजन लेने में। इसीलिए इस समय में थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। तो ये आपकी समरी है इस महीने की। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।